Hello students, welcome to MDC Learning. Standard FY BCom, subject Commerce 2, topic Marketing Mix for Services. Marketing Mix for Services. To gain competitive advantage in the market, the service provider must adopt a proper blend of elements to effectively market the services. See, means whenever the service provider is providing the services, he should take or he should adopt a proper elements so that he can provide the effective services. ठीक है. Now see, students, there are different types of service sectors in our market, like retail is there, banking is there, correct, insurance is there, hotels are there, education, health, then social work, computer services are there, IT sectors are there, recreation facilities, communication facilities, internet service provider, electricity provider, gas, water supply. So there are many service sectors, those who are providing the services. Okay, so whenever they are providing the services, they have to adopt a proper elements, I can say, or I can say a proper proper essential things they should adopt, so that they can provide a uh, so they can provide effective services in the market, and they can compete in the market, correct. The marketing mix for services consists of 8 elements, which are referred to as 8 P's of services marketing. So whenever the service provider is will provide the services, they have to adopt the 8 elements, okay, and this 8 elements is known as 8 P's. 8 P's, okay. The elements are as follows. Now what are the 8 P's? See, the 8 P's are: first one is product, then people, place, process, price, promotion, physical evidence, productivity, and so on. Okay, so these 8 P's, why the name is given 8 P's? Because these are 8 number which are starting from the word P. Product starts from P, process starts from P, price starts from P, correct. So these 8 elements the service provider should take into consideration while providing the services to the customers. Okay, and if they are adopting these 8 elements, they can provide the effective services in the market, and they can compete with the competitors. So let us see the first one: product. See, the service product must be designed properly to create value up to the customer. See, students, whenever the service providers are giving the services to the customers, okay, services are the intangible things, okay, but the services is product for them, because they are गिविंग सम सर्विसेज फॉर द मनी. ठीक है. सी फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं अगर एक पोस्टपेड कनेक्शन लेती हूँ मोबाइल का. ठीक है, मोबाइल का मैं एक पोस्टपेड कनेक्शन लेती हूँ. पोस्टपेड मतलब जहाँ पे बिलिंग कनेक्शन होता है, राइट. तो दिस पोस्टपेड कनेक्शन वेन एवर आई एम गिविंग टू द कस्टमर, ठीक है, तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, the service provider will give different types of plans. See for example, कि अगर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है डेटा की, मुझे इंटरनेट चाहिए, मुझे डेटा चाहिए, ठीक है, तो 500 रुपीज़ में अनलिमिटेड डेटा, राइट. जैसे अपना जियो देता है 399 रुपीज़ का रिचार्ज करो एंड यू विल गेट द हाई स्पीड डेटा, करेक्ट. यही अगर आप वोडाफोन में जाते हो और अगर आपको डेटा चाहिए, देन इट इज़ 1000 रुपीज़. सो सी, दे आर गिविंग यू सम प्रोडक्ट मीन्स दे आर गिविंग यू सम सर्विसेज, ठीक है. लेकिन ये जो सर्विस प्रोवाइडर जब भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उनके लिए तो ये प्रोडक्ट ही होता है, बिकॉज दे आर गिविंग यू दिस सर्विसेज फॉर मनी, करेक्ट. सो द प्रोडक्ट विच द सर्विस प्रोवाइडर इज सिलेक्टिंग, दैट शुड क्रिएट द वैल्यू टू द कस्टमर. उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए कस्टमर के लिए. सी, डिजाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स बिगिंस विथ क्रिएटिंग सर्विस कॉन्सेप्ट दैट विल सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स मोर देन द कॉम्पिटिटर्स. जो भी सर्विसेज प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर्स को, उससे कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड. द कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड, करेक्ट. कस्टमर प्रोवाइड्स मस्ट सर्विस प्रोवाइडर मस्ट डिफ्रेंशिएट देयर ऑफरिंग इन रिलेशन टू द कॉम्पिटिटर्स. जो भी सर्विस प्रोवाइडर ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को, ठीक है, that should be different from the competitors. Okay, the service product must provide core benefit that responds to the primary need of the customer. और जो सर्विस प्रोवाइडर देने वाला है कस्टमर को, उससे कस्टमर्स के कोर बेनिफिट्स तो फुलफिल होने चाहिए. सी, कोर बेनिफिट्स मतलब जो उनके प्राइमरी नीड्स होते हैं कस्टमर के. फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जाने का प्राइमरी
या कोर बेनिफिट क्या होता है कि बच्चे को एजुकेशन मिले. इफ़ यू आर गोइंग इन हॉस्पिटल, सो कोर बेनिफिट क्या होता है कि वहाँ पे पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट मिले. ठीक है. सो एग्जाम्पल देखो, कॉलेज प्रोवाइड्स द कोर बेनिफिट ऑफ एजुकेशन. कॉलेज क्या करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ये एक प्राइमरी बेस नीड है. इन एडिशन कॉलेज प्रोवाइड सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स थ्रू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कल्चरल एंड स्पोर्ट इवेंट्स, स्पोर्ट एक्टिविटीज़, है ना. तो देखो कॉलेज का मेन, और कॉलेज जो होता है वो उसका प्राइमरी सर्विस वो क्या प्रोवाइड करता है, तो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो जो भी बच्चा कॉलेज में पढ़ने जाता है उसका कोर नीड्स जो है वो फुलफिल होता है कि उसे एजुकेशन मिलता है. इसके अलावा कॉलेज जो सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. बच्चों के लिए कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जो अपने कॉलेज में भी होता है. करेक्ट. सो बच्चों, दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट. देन सेकेंड वन इज पीपल. Second one is people. See, people means, see, if the service provider is providing the services to the customers, ठीक है, there are the employees who are getting interact with the customers. ठीक है. तो जो भी बंदा सर्विस प्रोवाइड करता है या जो भी एम्प्लॉयज़ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दे शुड हैव अ गुड रेपो विद द कस्टमर. ठीक है. सी, कस्टमर ऑफ्टन जज क्वालिटी ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ पीपल प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. ठीक है ना. वेनेवर अगर हम कहीं पे भी सर्विस लेने जाते हैं तो जो भी बंदा हमें सर्विस देता है हम उसे जज करके ये डिसाइड करते हैं कि हमें वहाँ पे सर्विस कैसे मिली. अगर वो पर्टिकुलर बंदे ने या वो पर्टिकुलर इंसान ने हमें प्रॉपर सर्विसेज दी है जिससे हम सेटिस्फाई है, तो हम ये जज करते हैं कि हाँ उन्होंने हमें अच्छी सर्विसेज दी है करके, लाइक दैट. ठीक है. डिस्पाइट टेक्नोलॉजी एडवांसेस, मैनी सर्विसेज स्टिल रिक्वायर डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस स्टाफ एंड द कस्टमर्स. ठीक है. अभी आज के डेट में बहुत सारी सर्विसेज हमें ऑनलाइन मिलती है. देखो, रिचार्ज हम ऑनलाइन करते हैं, बिल पेमेंट्स हम ऑनलाइन करते हैं, है ना. बैंक में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम घर पे बैठ के ऑनलाइन किसी के भी अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें अभी टेक्नोलॉजिकली हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे सर्विस स्टाफ और कस्टमर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है. ओके. द नेचर ऑफ दिस इंटरेक्शन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस हाउ कस्टमर्स परसीव द सर्विस क्वालिटी. और ये जो इंटरेक्शन होता है कस्टमर और सर्विस स्टाफ के बीच में, इससे कस्टमर ये जज करता है कि सर्विस क्वालिटी, पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर की क्वालिटी कैसी है. राइट. देन स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज प्लेस एंड टाइम. प्लेस एंड टाइम. See, service delivery involves decision relating to the place and time of delivery. It also involves decision regarding the method and channels used to deliver the services. Services needs to be delivered at the place and time which is convenient to the customers. ठीक है. देखो, नाउ सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर प्लेस एंड टाइम भी होना चाहिए. ठीक है. सी, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इफ़ आई स्पीक अबाउट द जो अपना ओला होता है, करेक्ट, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू द पीपल. ठीक है. तो अगर हम ओला बुक करते हैं या अगर हम कोई भी कार बुक करते हैं, तो वी शुड गेट दैट सर्विसेज एट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 1 घंटे तक वेट कर रहे हैं और उसके बाद वो कार आ रहा है. ठीक है. और प्रॉपर प्लेस जहाँ पे आप हो वहाँ पे आपको पिकअप करने के लिए आनी चाहिए कार. सो place and time is also very very important. Correct. Therefore service firms may use intermediaries such as franchisee to deliver the services to the customers. ठीक है. नाउ जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर खुद पर्टिकुलर एरिया में नहीं जा सकते, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर ने फ्रेंचाइजीज को अपॉइंट करना चाहिए या अडॉप्ट करना चाहिए, फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस करना चाहिए, ताकि फ्रेंचाइजी क्या कर सके, कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. ठीक है. तो दैट इज स्टूडेंट्स अबाउट द प्लेस एंड टाइम. Next one is price. See, if service provider will give the services to the customers have to pay the price. The customers have to pay the money, correct, to the service provider. So it is a value customers of the service which the service provider charge to the customers. The service provider must consider certain factors in pricing of services. देखो, जब भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर को, तो प्राइस जो वो चार्ज करेगा दैट शुड डिपेंड अपॉन सम ऑफ द फैक्टर्स लाइक कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, कंपटीशन इन द मार्केट, है ना. कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस चल रहा है उनके साथ, कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज क्या है. ठीक है.
डिमांड फॉर द सर्विसेज सी फॉर एग्जांपल, ये प्राइस के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर हम ब्लू डार्ट कंपनी की बात करें, ब्लू डार्ट कंपनी इज़ अ कुरियर सर्विस, ठीक है, जहाँ पे आप कुरियर कर सकते हो ऑल ओवर वर्ल्ड। यू कैन कुरियर योर थिंग्स ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन ये जो ब्लू डार्ट कंपनी है, इनका एक ये है विजन कि वो कस्टमर्स को प्रॉपरली दे विल सेटिस्फाई द कस्टमर, और जो कुरियर है कस्टमर का, वो हम बहुत स्पीड से पहुंचाए कस्टमर के डेस्टिनेशन पे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ब्लू डार्ट में जाओगे, आपने अपना कुरियर दिया तो जहाँ पे भी आपको भेजना है वहाँ पे 1 महीने के बाद जाएगा, 2 महीने के बाद जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। दे प्रोवाइड द क्विक सर्विसेज टू द कस्टमर्स। आपका कुरियर है, वो जो भी टाइम वो बताएंगे उस टाइम में आपका कुरियर वहाँ पे पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ठीक है। ये उनकी सर्विस की क्वालिटी है। बट फॉर दैट दे चार्ज द हाई प्राइस फॉर दैट, दे चार्ज द प्रॉपर रिजनेबल हाई प्राइस फॉर दैट, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट द प्राइस। सो कस्टमर में कैलकुलेट वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर सर्विस इज वर्थ द प्राइस। कस्टमर भी ये कैलकुलेट करेगा, कस्टमर भी ये सोचेगा कि जो प्राइस हम सर्विसेज के लिए दे रहे हैं, क्या सर्विस प्रोवाइडर हमें उस क्वालिटी का सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा है, करेक्ट। तो दैट इज़ अबाउट प्राइस। सो बिफोर फिक्सिंग द प्राइजेस फॉर सर्विसेज, द सर्विस प्रोवाइडर शुड कंसिडर वेरियस फैक्टर्स लाइक मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस है, कॉम्पिटिटर्स क्या दे रहा है कस्टमर्स को मार्केट में, अपने खुद के कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज कैसा है, व्हाट इज़ माय ब्रांड, डिमांड कितनी है मार्केट में। बेस्ड ऑन दैट द प्राइस कैन बी फिक्स्ड। देन नेक्स्ट वन इज प्रमोशन। सी अगर आपको इफ़ यू वांट टू गिव द सर्विसेज, ठीक है, जैसे हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये हमारा नया मार्केट में प्रोडक्ट आया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ सेल्स प्रमोशन करते हैं, या सेल्समैनशिप करते हैं, या एडवर्टाइजिंग करते हैं। सेम वे इफ़ द सर्विस प्रोवाइडर वांट टू provide the services in the market, they have to communicate with the public, they have to communicate with the public, ठीक है। तो कैसे पब्लिक से कम्युनिकेट करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे, कुछ ब्राउचर्स वगैरह छापेंगे, लाइक दैट, है ना। सो प्रमोशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन मिक्स दैट इंड्यूस द कस्टमर्स टू बाय द सर्विसेज। प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स वेरियस टेक्निक्स सच एज एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप एक्सेट्रा। तो प्रमोशन कैसे कर सकते हैं हम, एडवर्टाइजिंग से, सेल्स प्रमोशन से, या सेल्समैनशिप से हम प्रमोशन कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट वन इज physical evidence. See, physical evidence is also very very important. If the service provider is providing you the services, first of all you will like to know about the physical appearance of that particular सर्विस प्रोवाइडर। सी मान लो कि अगर आपको कहीं पे होटल में खाना खाने जाना है विथ योर फैमिली, ठीक है, तो आप ऐसा होटल चूज़ करोगे जिसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा हो, ठीक है ना, जहाँ पे बैठने के लिए प्रॉपर प्रॉपर टेबल्स हो, इट शुड बी कंफर्टेबल, हाइजीनिक होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, है ना, क्लीनिनेस होना चाहिए, प्रॉपर फर्नीचर, जहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन मिले। तो अगर आप और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हो या कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो, कोई डॉक्टर के क्लिनिक में जा रहे हो, तो डॉक्टर का क्लिनिक भी जो होता है, डॉक्टर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, करेक्ट, बट द क्लिनिक शुड बी जहाँ पे कुछ गुड इंप्रेशन क्रिएट होना चाहिए, है ना, देयर शुड बी सम गुड इंप्रेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटिंग्स होनी चाहिए, जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है वो भी क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर फर्नीचर, क्लीनिनेस होना चाहिए, करेक्ट, टॉयलेट्स की वगैरह फैसिलिटी होनी चाहिए। सो all this is concerned with the physical evidence. So physical evidence is a vital element of service marketing. Some services are highly intangible. Services जो होते हैं वो intangible होते हैं, and therefore physical evidence plays an important role in creating good impression on the customer, है ना। तो फिजिकल एविडेंस जो होता है, इससे हम कस्टमर पे क्या कर सकते हैं, गुड इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। द फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स विजिबल क्लूज ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। फिजिकल एनवायरनमेंट से ये पता चलता है कि सर्विसेज की क्वालिटी कैसी हो सकती है यहाँ पे। द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एविडेंस विल इंक्लूड, अभी देखो फिजिकल एविडेंस में कौन सी चीज़ें आती है, एक्सटर्नल सराउंडिंग्स वेयर सर्विसेज इज लोकेटेड, उसकी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स, ठीक है। मान लो कि आप एक होटल में 4 दिन घूमने गए हो और वहाँ पे आपने एक होटल बुक किया रहने के लिए 4 दिन, लेकिन उसका अगर एक्सटर्नल सराउंडिंग क्लीन नहीं है, वहाँ पे एक्सटर्नल सराउंडिंग अच्छा नहीं है, बहुत आवाज़ हो रही है, एकदम स्लम एरिया है, सो यू विल नॉट गो देयर, करेक्ट।
फिर उसका फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कैसा है इनसाइड द ऑफिस, लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन कैसा है, क्लीनिनेस कैसा है, हाइजीनिक कैसा है, वहाँ का स्टाफ मेंबर्स कैसे हैं. सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द फिजिकल एविडेंस. देन स्टूडेंट्स प्रोसेस. ठीक है, देखो प्रोसेस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. प्रोसेस जो होता है वो भी बहुत ही सिंपल होना चाहिए, स्मार्ट एंड सिंपल होना चाहिए प्रोसेस. ठीक है, सी फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा. तो आप जब भी बैंक में जाओगे तो बैंक वाले आपको कहेंगे कि यू हैव टू गिव योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो एंड द डिपॉजिट अमाउंट विच यू वांट टू डिपॉजिट. तो इससे आपका अकाउंट खुल जाएगा. ठीक है, इसके अलावा आपको अपने नॉमिनी का भी आईडी प्रूफ देना होगा एंड ऑल्सो. तो क्या प्रोसेस कंपनी फॉलो करती है टू प्रोवाइड सम सर्विसेज दैट कम्स अंडर प्रोसेस. ठीक है, तो देखो द सर्विस प्रोसेस रिलेट्स टू हाउ अ सर्विस प्रोडक्ट इज डिलीवर टू द कस्टमर. जो सर्विस प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, वो कस्टमर को कैसे डिलीवर करेंगे. डॉक्टर के पास जाना है तो पहले नंबर लगाना पड़ता है या पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है. क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, करेक्ट, लाइक दैट. इट इन्वॉल्व्स द मेथड एंड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस विथ विच द फर्म डिलीवर्स द सर्विस एलिमेंट्स. है ना, तो प्रोसेस मतलब क्या मेथड फॉलो करते हैं सर्विस प्रोवाइडर, क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं एंड दैट ऑल. देन द सर्विस स्टाफ में प्ले एन इफेक्टिव रोल इन द सर्विस प्रोसेस. है ना, तो सर्विस स्टाफ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्विस प्रोसेस में. कस्टमर्स में ऑल्सो टेक पार्ट इन सर्विस प्रोसेस. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा. सर्विस प्रोसेस इन रेस्टोरेंट. देखो मैं आपको रेस्टोरेंट का सर्विस प्रोसेस बता रही हूँ. अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर फॉर फूड विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू फूड दैट ही शी वांट स्पाइसी, नॉन स्पाइसी एक्सेट्रा. है ना, सबसे पहले अगर हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हम ऑर्डर करते हैं. वेटर आता है अपने यहाँ पे और ऑर्डर लेता है. तो वेटर को हम बताते हैं कि हमें कैसा फूड चाहिए, स्पाइसी चाहिए तो मतलब तीखा, या नॉन स्पाइसी मतलब तीखा नहीं चाहिए, लाइक दैट. ठीक है, द वेटर टेक्स द ऑर्डर. वेटर ऑर्डर लेता है एंड इंस्ट्रक्ट द शेफ अकॉर्डिंगली. करेक्ट, वेटर ऑर्डर लेता है और जो भी शेफ होता है, जो कुकिंग रूम में होता है, जो खाना बनाता है, उसे जाके वो ये ऑर्डर दे देता है. वंस द फूड इज़ कुक्ड, एक बार ये फूड कुक हो जाता है, द वेटर सर्व्स टू द गेस्ट. वेटर क्या करता है, ये खाना या फूड जो है ये गेस्ट को सर्व करता है प्लेट्स में. उसके बाद खाना खाने के बाद बिलिंग इज़ मेड. है ना, खाना खाने के बाद बिलिंग होता है. कभी देखा है कि हॉट रेस्टोरेंट में गए हैं और खाने के पहले बिलिंग हुआ है? नहीं, खाना खाने के बाद बिलिंग होता है. तो बिलिंग इज़ मेड फॉर द फूड सर्विसेज एंड द गेस्ट मेक द पेमेंट्स. बिलिंग होगा तभी तो गेस्ट पेमेंट करेगा. तो ये एक सीक्वेंस फॉलो की जाती है जब भी कस्टमर या जब भी कस्टमर रेस्टोरेंट में जाता है. तो हर एक सर्विसेज के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है. तो वो प्रोसेस सर्विस प्रोवाइडर को फॉलो करनी पड़ती है एंड इट शुड बी वेरी वेरी सिंपल. वहाँ पे कस्टमर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. देन नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी. ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी, whenever you are providing services, whenever the service provider is providing the services, there should be increase in productivity and quality service should be provided. ठीक है, सी improving productivity and quality of service is vital to the success and survival of the service firm. तो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इम्प्रूव करो. ठीक है, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पे द सर्विस प्रोवाइडर कैन सर्वाइव इन द मार्केट. करेक्ट. देन नाउ सी स्टूडेंट्स, कैसे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो स्टाफ को मोटिवेट करो, स्टाफ को ट्रेनिंग दो. ठीक है ना, तो इस सारे चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो देखो. ठीक है, देन एम्प्लॉयज़ की क्या रिक्वायरमेंट है वो देखो. सो बेस्ड ऑन दिस द प्रोडक्टिविटी कैन बी इम्प्रूव. और क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो क्वालिटी के लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा. मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के साथ रिसर्च करो और क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के क्वालिटी को इम्प्रूव करो. सी ड्यू टू स्टीफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, द सर्विस प्रोवाइडर नीड्स टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज. देखो मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो सर्विस प्रोवाइडर को हमेशा क्या करना है, उनका प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है. ठीक है, सर्विस की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करनी है और सर्विस की क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है. तो इसलिए उनको हमेशा मार्केट में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, रिसर्च करना पड़ेगा. कस्टमर्स की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है मार्केट में. तो ये सब जानने के बाद द सर्विस प्रोवाइडर कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज. ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अबाउट द 8 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग
मार्केटिंग मिक्स आई कैन से फॉर सर्विसेज, ठीक है। तो ये 8 एलिमेंट्स आपको वन बाय वन पढ़ने हैं, तो जो हमने पढ़े। सो व्हाट वर द 8 एलिमेंट्स? फर्स्ट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट, पीपल, प्लेस, प्रोसेस, प्रोडक्टिविटी, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल एविडेंस। ओके, so thank you very much.